السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مشکلات میں اللہ پاک کی مدد۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ پاک پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ اللہ پاک ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ پاک پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقت ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ پاک جواب نہیں دیتا؟ جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ پاک تب کہیں کسی کے دل نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، قرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں ضائع جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ پاک جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ پاک کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی۔ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئی تو سانسیں رک گئیں، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائے تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ پاک تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ پاک کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ پاک سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ پاک نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ پاک کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ پاک کے کام کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ جب ہم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تب اللہ پاک پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں۔ اللہ پاک کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں۔ اللہ پاک سے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں، بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اسے یقین کے ساتھ اس سے مانگو اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ پاک بھی تمہیں ناممکن سے ہی عطا کرتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکیوں میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ پاک سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ آغاز تلک ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے تام میں تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی تمہیں نہیں مل رہا تو پھر انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے۔
क्योंकि तुम चाह भी नहीं सकते। अगर वो न चाहे तो सारी बात तौफीक की होती है। जब अल्लाह पाक नाराज होता है तो सजदे की तौफीक भी ले लेता है। फर्ज नमाज भी अदा नहीं होती और जब अदा करने पर आता है तो आधी रातों को जगाकर अपने हुजूर खड़ा भी कर देता है, सजदे की तौफीक भी देता है, रो रो कर तौबा भी करवाता है और कबूल भी करता है और जो मांगा जाए वो भी देता है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अभी भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह पाक हर चीज की असलियत हमारे सामने जरूर खोल देता है। हर इंसान की जब कोई इंसान हमें तकलीफ देता है वो अपनी हकीकत दिखा जाता है कि वो असल में क्या है। अल्लाह पाक का इशारा ही समझो और अपने दिल को मजीद तकलीफ से बचा लो। दुआ करो कि अल्लाह पाक हर उस चीज को तुमसे दूर कर दे जो आगे जाकर तुम्हारे दिल को तोड़ न दे और अल्लाह पाक उस चीज को तुम्हारी जिंदगी से निकाल दे। उनकी हकीकत दिखाकर सूर बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो तो देखो जब कोई ऐसी आजमाइश आ जाए कि कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, आपको हक पर होते हुए भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो ऐसे में अपने अल्लाह पाक पर यकीन और पुख्ता कर लेना, फौरन उठना, वजू करना, खुशू के साथ नमाज अदा करना और अल्लाह पाक से मदद मांगना कि अल्लाह पाक आप तो जानते हैं मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए यहाँ आए हूँ। अब मुझे साबित कदम रखना, मुझे अपने नफ्स के हवाले न करना, मुझे शैतान के वसवसे से बचा लेना। मैं माजी के गुनाहों में पड़ना नहीं चाहती। फिर देखना अल्लाह पाक कैसे तुम्हारी मदद करता है, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे यकीन की आजमाइश होती है। तुम तो खुश नसीब हो कि उसने तुम्हें हिदायत दी है और अपने रास्ते के लिए चुना है। अल्लाह पाक को पाने का सफर आसान होता है तो हजरत याकूब की आंखों की रोशनी न जाती, ईमान कमजोर पड़ जाता। कोई बात नहीं, कदम लड़खड़ा जाते, कोई बात नहीं, दिल घबरा जाता, कोई बात नहीं, रोना भी आता है, मगर कोई बात नहीं, उस सब के बाद भी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। चलते चलते थक भी गए हो तो कदम रुकने नहीं चाहिए, रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना चाहिए। और यहीं पर अल्लाह पाक को उसके प्यारे बंदे मिलते हैं, वो जो सफर करते रहते हैं, वो जो गिरकर भी भड़कते नहीं। और यही यकीन तुम्हें अल्लाह पाक का बना देता है, क्योंकि अल्लाह पाक तो बस तुम्हारा यकीन देखता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। दुआएं सब कुछ कर सकती हैं जो मांग रहे हो। तुम्हारे लिए दुनिया के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हो वो इस पूरे निजाम हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता है और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में फिर शाम रात में बदल जाती है। जो तुम्हें आज तक संभालता आया है वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल न करेगा। अल्लाह पाक से जब भी मांगो जैसे भी वो जरूर सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीनों में छुपे हर राज से वाकिफ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद ही कबूल होती नजर आएंगी, खुद ही मोजे रोनमा होते नजर आएंगे। जिंदगी के बहुत सारे असबाबों में से एक सबक यह भी सीखा है मैंने कि जब हम अल्लाह पाक पर मामला छोड़ देते हैं, वो रब ऐसी ऐसी जगहों से हमें नवाजता है कि इंसान हैरत जदा होकर सोचता है कि या अल्लाह मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। हम लोग यह सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया है उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। यह नहीं देखते कि अल्लाह पाक हमें दुनिया में क्या क्या दे रहा है उसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले के मुकाफत अमल की, तो वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कब किसको और कैसे क्या सबक देना है। सिर्फ एक बार दिल बड़ा करके अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ कर देखिए। अल्लाह पाक का वादा है जो तेरा नसीब है वो तुझे जरूर मिलेगा, चाहे वो दो पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना हो। और जो तेरे नसीब में नहीं तुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो दो होठों के दरमियान ही क्यों ना हो। यह भी तो मुमकिन है कि तुमने मायूस होकर जो दुआ मांगना छोड़ दी है वही तुम्हारी कबूलियत की दुआ हो। वो चीज जो तुम्हें शिद्दत से वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उसके लिए हाथ उठाकर फरियाद करते रहोगे। क्या पता तुम्हारे नसीब के उस सफ़े पर अल्लाह पाक ने यही लिखा हो। तो अगर तुम उस चीज के लिए लड़ना ही छोड़ दोगे, तो दुआ के लिए झोली फैलाना ही बंद कर दोगे, तो वो चीज तुम्हें कैसे मिलेगी। दुआ मांगते हुए कबूल होने या न होने का शक दिल में नहीं रखते। पता नहीं कि दुआ कबूल होगी भी या नहीं,
पता नहीं ये चीज हमें मिलेगी भी या नहीं, ये काम मुमकिन हो सकेगा या नहीं। तुम्हारी जात के अल्लाह पाक की जात तो उससे कहीं ज्यादा वसी है। वो तो मौजूदों का वास्ता है। वो जब चाहे हालात बदल सकता है, वो जब चाहे दिल बदल सकता है, वो जब चाहे लाहासिल चीज से नवाज सकता है, वो जब चाहे नसीब बदल सकता है। अल्लाह पाक वो कर सकता है जो तुम नहीं कर सकते। तो जिसकी साथ महदूद है उससे महदूद दुआएं कैसी। आप अपने आमाल देखकर नहीं, उसकी शान देखकर मांगो। जिसने तुम्हें बनाया है उससे बेहतर तुम्हें कोई भी नहीं समझ सकता। याद रखो, कायनात में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा रब नहीं कर सकता। कायनात में ऐसा कोई जख्म नहीं जिसे अल्लाह पाक भर नहीं सकता। अल्लाह पाक कभी भी इंसान को मायूस नहीं होने देता। अगर वो उम्मीद का एक दरवाजा बंद कर देता है तो उसके बदले 10 दरवाजे और खोल देता है। लेकिन उन दरवाजों को देख वही सकता है जो यकीन करता है। और जानते हो यकीन क्या है? तब भी आगे बढ़ना जब जिंदगी थका कर गिरा दे, तब भी मुस्कुराना जब मुस्कुराने की कोई वजह ना मिले, और कहना तू राजी तो मैं भी राजी। उस चीज के लिए हाथ उठाओ और गिड़गिड़ाना जिसका मिलना नामुमकिन हो। यह यकीन की वो कैफियत है जब इंसान का दिल चीख चीख कर कहता है मेरा रब कादिर है हर शय पर। जब इंसान यह यकीन कर लेता है तो कैसे हो सकता है कि फिर वो दोनों जहानों का वास्ता उसे अपनी ताकत के जलवों से महरूम रखे। फिर तो मेरा रब कहता है तूने अब मुझ पर यकीन रखा है, तू फिर देख मैं कहां कहां से कैसे कैसे असबाब पैदा करता हूँ। फिर वो वहां से वसीले भेजता है कि इंसान देखता रह जाता है। बस फिर हर महरूमियत से वो इंसान को आजाद कर देता है और अपनी मोहब्बत की कैद में रख लेता है। और जिसको वो अपनी मोहब्बत में कैद कर ले उसकी मुकद्दर की तो क्या ही बात है। जब वो मुआवजे करने पर आता है तो मजाल है किसी चीज की जो रुकावट बने। अल्लाह पाक हर दुआ का जवाब देता है, बस जरिए मुख्तलिफ होते हैं। कभी वो किसी इंसान को आप से मिलवा कर जवाब देता है और कभी उसे आप से दूर करके। कभी वो हवाओं के हाथ पैगाम भेजता है तो कभी अपना जवाब किसी ठोकर में छुपा देता है। कभी वो सजदे में गिराकर अपनी मसले समझाता है और कभी हाथ थाम कर सब्र का सिला देता है। आजमाइश का आना और रूह का रेजा रेजा होकर बिखर जाना बेवजह नहीं है। कभी तकलीफ में हो तो अल्लाह पाक को महसूस करना, फिर उसकी मौजूदगी भी दिखाई देगी और उसकी सरगोशी भी सुनाई देगी। तड़प दिल में वो तभी उतारता है जब वो तुम्हें याद करता है। फिर तब वो चाहता है तुम उससे बात करो, उसे अपनी कैफियत सुनाओ, अपनी सारी परेशानियां उसकी दहलीज पर छोड़ाओ, हर फैसला उसके सुपुर्द कराओ, ताकि बस तुम और अल्लाह पाक रह जाएं। फिर से मुस्कुराओ और सब भूल जाओ। फिर बस उसी के जिक्र में है और सुकून के लिए तो उसका नाम ही काफी है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अल्लाह पाक है और जिसके साथ वो है उसके साथ तो कायनात की रौनक चलती है। दुआओं में तासीर आँख की तलब से आती है और ताकि आँख की बेहतरी के लिए होती है। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तरफ का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं, रूह की तलब और कैफियत का नाम है। दुआ ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें मांगने वाला अपनी परेशानियां अल्लाह पाक के हवाले कर देता है और अल्लाह पाक जवाब में अपनी रहमत झोली में डाल देता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता अल्लाह पाक तुम्हारी अक्सर ख्वाहिश को रद्द करके तुम्हें कितने अजाब से बचाता है। अल्लाह पाक किसी को मायूस नहीं करता, उससे मांगते रहो। एक दिन या तो वो तुम्हें अता करने के बाद वो सुकून कर देगा, वरना इस एहसास से बेनियाज करके मालामाल कर देगा। बस यकीन रखो उस पर। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। दुआ करते रहा करो। दुआ ऐसी इबादत है जो अल्लाह पाक से हर बात मनवा लेती है। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं पूरी कर रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआएं पूरी करने में देर कर रहा है तो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा तो तुम्हें वो आजमा रहा है। इसलिए हमेशा दुआएं मांगते रहा करो। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकता है। मोजे होते हैं, खामोश खौफ सच हो जाते हैं और टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। यह सब वही है जो नमाज और दुआ से होता है। अल्लाह पाक जब तौफीक दुआ तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख देता है तो कबूलियत के मोजे खुद ब खुद आखिरी सांस तक खुले रखता है। तो तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई भी वजह बाकी ना रहे, क्योंकि बेबस तुम हो। वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है।
दुआ एतमाद है, दुआ यकीन है, दुआ उम्मीद है, दुआ भरोसा है, दुआ गुफ्तगू है, दुआ पाकीज़ा वसीला है, दुआ हौसला है, दुआ मोहब्बत है, दुआ राज है, दुआ हमदर्द है, दुआ ताकत है, दुआ से कायनात है और मेरी यह दुआ है। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तुम्हारी दुआएं तुम्हारी जुबान से अदा होने से पहले ही कबूल हो जाती हैं। बस उनके मिलने का वक्त तुम्हारे मांगे हुए वक्त से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है और कायनात के सारे मुझसे दुआओं से ही तो होते हैं। और वो दुआ जो मुंह से निकलते ही कबूलियत के मरहाल में दाखिल हो जाती है, वो टूटे दिल की दुआ है। बस फिर जो मांग लिया जाए उसकी अता में देरी नहीं की जाती। फिर वो सय भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा ना हो। क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। दुआ की कबूलियत आपके अंदर होती है जब आपका इखलास, आपकी नियत, आपकी कारकर्दगी और इस तरह एक फ्रिक्वेंसी पर जमा हो जाए तो दुआ की कबूलियत यकीनी है। अल्लाह पाक जाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र। जरा इंतजार करो, जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जब तुम सजदों पर सजदा करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख उसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तब वो तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाज रख लेता है, सारे वसवसे को खत्म कर देता है। उसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती मगर महसूस करो तो रंगों में उसकी मोहब्बत का रंग खून की मानंद दौड़ने लगता है। उससे बेहतर लिखारी तो कोई हो ही नहीं सकता, जो इख्तियार रखने के बावजूद नसीब के पन्नों को अपनी चाहत से तुम्हारी चाहत में बदल देता है। वो बादशाहों का बादशाह होकर भी तुम्हें सुनता है और एक तुम हो कि फर्ज होने के बावजूद उसके पुकार का जवाब नहीं देते। कभी उसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग फीके लगने लगेंगे। कभी उसको सुनकर तो देखो, कायनात की सारी आवाजें बेमायने लगने लगेंगी। वो जिसको चाहता है अपनी जानिब मोड़ लेता है, चुपचाप, और किसी को खबर भी नहीं होती। बस फिर वो एक हुक्म देता है और कायनात की सारी ताकतें मुतहद हो जाती हैं। कुन उसके घर तवाफ करने लगता है और सारी बातें फयाकुन पर खत्म हो जाती हैं। यूं सभी कहानियां मुकम्मल हो जाती हैं, कभी आंसू, कभी सजदे और कभी हाथों का उठ जाना। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह पाक बहुत याद आता है। सब्र करो और यकीन रखो, मायूस दिलों के लिए मोज़े नहीं होते। अपने दर्द को अल्लाह पाक से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और रब जाने। वो अपने एक हुक्म से हर वो सय बदल देता है जिसके लिए दिल मुतमईन नहीं होता। मैंने अधूरी तमन्नाओं का हल सजदों में पाया है। तहज्जुद नाम है उस सुकून का जिसमें मेरे अल्लाह पाक से तवील गुफ्तगू होती है। एक वही तो है जो तुमसे बेजार नहीं होता, वो तुम्हें सुनता है और बहुत गौर से सुनता है। अल्लाह पाक अपने बंदे की तड़प कभी भी जाया नहीं होने देता। नदामत भरा एक आंसू और रब आपका उम्मीद कभी मत छोड़ना। कमजोर तुम हो, तुम्हारा अल्लाह पाक नहीं। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है उस वक्त भी अल्लाह पाक हमारे साथ होता है। सब्र रखो और अल्लाह पाक के फैसलों पर खुश रहो, तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। अल्लाह पाक ने हमें बाज रास्ते बताए हैं, ये घाटे के सौदे हम खुद करते हैं। उसके एक कुन पर हकीकत बदल जाती है। दुनिया की हर चीज महदूद है मगर अल्लाह पाक की मोहब्बत लामहदूद है और अल्लाह पाक तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कभी कोई गम देखा ही ना हो। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह पाक इंसान को दुआ मांगना नहीं सिखाता। जो आंसू अल्लाह पाक की आगोश में जाते हैं उन आंसुओं का भरम वो कभी भी नहीं तोड़ता। सोच अगर खूबसूरत हो तो अल्लाह पाक तकदीर भी बदल देता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पाक पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। तहज्जुद में जिसने अल्लाह पाक को पा लिया उसने गोया दुनिया जहां का सुकून पा लिया। अल्लाह पाक तो सबका है लेकिन जब उसके आगे सजदारेज होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह पाक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मुझे वो देख रहा है, सिर्फ मुझे वो सुन रहा है, सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह पाक है। और ऐसा तब होता है जब सिर्फ सजदा नहीं बल्कि सजदा मोहब्बत अदा किया जाए। नसीब से जिद कभी नहीं लड़ सकते, नसीब से आजीज लड़ती है। जब हम अल्लाह पाक के एहतराम में सर को झुका लेते हैं, जब हम इसकी रजा के लिए रेजा रेजा होकर मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं तो वो उस मिट्टी से हमें दोबारा जिंदा करता है। फिर वो ना होने से होने का वसीला बनाता है। फिर वो अपने हुक्म से हर वो सय बदल देता है जिस पर हमारा दिल मुतमईन हो जाता है।
मेरा रब वो है जो मशरिक वालों को देखता है तो मगरिब वालों को नहीं भूलता, जो आसमानों का निजाम चलाते हुए समंदरों का निजाम चलाना नहीं भूलता, जो रात के अंधेरों में सजदा करने वालों को देखता है तो बुराई की महफिलों से गाफिल नहीं होता, जो ऐसा माफ करने वाला है कि 100 साल के गुनाह एक पल में माफ कर देता है और पलट कर यह भी नहीं पूछता कि पलट कर तो नहीं करोगे। दुनिया साथ छोड़ देती है, दुनिया बेसहारा कर देती है, दुनिया गम नहीं बांट सकती, दुनिया देर तक साथ नहीं चल सकती। अल्लाह पाक से कितनी भी दूर चले जाएं, आखिर में जब आप अकेले रह जाएंगे तब भी आपके साथ सिर्फ आपका अल्लाह पाक होगा, जो आपको सहरक से ज्यादा करीब मिलेगा। कोई ऐसी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकता जैसे अल्लाह पाक अपने बंदे से करता है। यह जो मुश्किल आप पर आई है, सुनो, ये अपना हल साथ लेकर आई है। बंदरबाजों के आगे रोने से अच्छा है कि आप सजदे में उस रब से के सामने रो लो, क्योंकि सजदे में रोने वालों पर रब कोई दरवाजा बंद नहीं रखता। आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर आप इस दुआ से मांगना शुरू करें जो दुआ हर सूरत कबूल होती है और फौरन होती है। आप दुआ में हिदायत मांगना शुरू कर दें। हिदायत ऐसी चीज है जिसके लिए मांगी गई दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। कहते हैं हिदायत की दुआ करता ही वो है जिसकी कबूल होनी हो। आप हिदायत की दुआ करना शुरू करें। कुछ वक्त बाद आप महसूस करेंगे कि यह जो आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, वो कितना गलत लगता है। आपको हिकमत का मामला समझ में आने लगेगा। आप अपनी दूसरी दुआओं में मुस्तकिल मिजाज हो जाएंगे, दिल में वसवसे नहीं आएंगे, आपको दुआ मांगने का सलीका भी आएगा। आपके दिल को ठहराव नसीब होगा, आप तसल्ली पा जाएंगे। एह बहम की मेरी दुआएं कबूल नहीं होती मिटने लगेगा। उसकी जगह यकीन हिदायत की दुआ मांगे, बहुत मांगे, सच्चे दिल से मांगे। आप बहुत कुछ नहीं सब कुछ पा जाएंगे कि अल्लाह पाक का वादा है, जिसने हिदायत पा ली उसने सब कुछ पा लिया। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप भी सब कुछ पा लेंगे। नमाज को हमेशा आजीज और इनकत से अदा करें, क्योंकि नमाज इंसान के लिए अल्लाह पाक से बात करने का एक बेहतरीन जरिया है। नमाज में अल्लाह पाक हमारी बात का जवाब देता है, इसलिए नमाज को ठहर ठहर कर अदा करें। सुकून से, बिल्कुल सुकून से नमाज की खुश और खुशू के साथ अदायगी हो, आपको सुकून कल्ब हासिल करने में मदद देगी। नमाज पढ़ते वक्त अल्लाह पाक की रहमत को महसूस करें। आप महकने लग जाएंगे, आपकी रूह महकने लग जाएगी। नमाज हम पर बोझ नहीं है। नमाज तो एक ऐसी इबादत है कि जब अल्लाह पाक के बंदे दुनियावी काम की थकावट महसूस करने लग जाते हैं तो फिर उनके कानों में अल्लाह अकबर की आवाजों की गूंज आना शुरू होती है। अल्लाह पाक नमाज के जरिए अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है। दुनियावी कामों से एक वक़्फ़ के तौर पर उन्हें नमाज के जरिए पैगाम भेजता है, अपने आप से मिलने बुलाता है कि आओ मेरे बंदो, उतार दो अपना दुनियावी बोझ, ला कर दो मेरे सुपुर्द अपनी सारी थकन, ला कर दो मेरे हवाले अपने सारे दुनियावी मामलात। कितना प्यारा सौदा है। यह सिर्फ चंद सजदों के जरिए हमें सुकून कल्ब बख्शा जाता है। सिर्फ चंद सजदों के बाद हमारी परेशानियां सिर्फ हमारी नहीं रहती, वो हमारी खालिक, वो मालिक की भी हो जाती हैं। जब हम किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं या फिर किसी मुसीबत में होते हैं तो मायूस हो जाते हैं, हर उम्मीद छोड़ देते हैं। हम अपने बुरे वक्त में इतना घबरा जाते हैं कि गलत रास्ता चुन लेते हैं और इतना गुम हो जाते हैं कि अल्लाह पाक को नाराज कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने हर बंदे से वादा किया है कि अगर उसके बंदे उसके बताए हुए सब्र और शुक्र के रास्ते पर चलेंगे तो वो अपने बंदे का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उनका हाथ हमेशा थाम कर रखेगा। बस शर्त यह है कि उसकी रस्सी को मजबूती से थामना है, किसी भी हाल में उस रस्सी को नहीं छोड़ना है। हमारे प्यारे रब ने हमसे वादा किया है कि वो अपने किसी भी बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा कभी भी नहीं आजमाएगा। अगर हम आजमाए नहीं जाएंगे, अपना इम्तिहान नहीं देंगे, तो फिर अल्लाह पाक की रवत कैसे हासिल करेंगे। अल्लाह पाक की बनाई हुई बेहद हसीन जन्नत का रास्ता आजमाइश में सब्र और शुक्र से होकर ही तो गुजरता है। बेशक अल्लाह पाक ने दुनिया का निजाम कुछ इस तरह से तख्लीक किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी मौजूद है। हम भूल जाते हैं कि जब हमारी माँ हमारा हाथ हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ती, हमें हमेशा माफ कर देती है, चाहे जाने अनजाने में या जानबूझकर हम उसका कितना ही दिल क्यों न दुखा दें। तो फिर अल्लाह पाक जो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो हमें कैसे भूल सकता है। हमारा हाथ और हमारा साथ वो कैसे छोड़ देगा। बेशक आसमानों और जमीन की कसम,
वो बेहद मेहरबान रहम करने वाला है, हमारे गुनाहों को बख्शने वाला है, हमारे दिल से की गई तौबा को कबूल करने वाला है। लेकिन शर्त यही है कि हम उसे पुकारें, उसे आवाज दे, वो हमारी लाजमी सुनेगा। हमें अपनी हर परेशानी में उसे याद करना है। अगर वो हमें आजमाइश में डालता है तो हमारे लिए ढेरों रास्ते भी खोल देता है और वो रास्ते उसे पुकारने पर ही नजर आते हैं। अगर हम अपने बुरे वक्त में सब्र और शुक्र करते हैं, अल्लाह पाक को याद करते हैं, उसके वादों को याद करते हैं, तो यह भी उसका एहसान है, उसकी रहमत है कि वो हमें भटकने नहीं देता। जब हम बुरे वक्त में होते हैं, हमारे हालात ठीक नहीं होते, तो हम मायूस हो जाते हैं, उम्मीद खो देते हैं, जबकि कुरान करीम में हर बंदे के लिए पैगाम है कि मायूसी कुफ्र है, लिहाजा हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक को याद करना चाहिए, उसे पुकारना चाहिए, उससे मदद मांगनी चाहिए। बेशक वो हम सबकी सुनने वाला है। अल्लाह पाक खुश होता है जब उसके बंदे उसे याद रखते हैं कि उसका बंदा उसकी दी गई आजमाइश में भी उसे मदद के लिए पुकारता है। उसका बंदा उसे भूला नहीं है, ना उम्मीद नहीं हुआ, मायूस नहीं हुआ। फिर वो अपने बंदे को अपनी रबत बख्श देता है और फिर उसका प्यारा बंदा हर आजमाइश को पुरसुकून तरीके से गुजारता चला जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने वो हाथ बहुत मजबूती से पकड़े रखा है, उसे लड़खड़ाने भी नहीं देता। फिर वो रब हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने मुश्किल वक्त में अल्लाह पाक को आखिरी सहारा मानते हैं, जबकि अल्लाह पाक हमारा वाहिद सहारा है। और अगर हम उसे वाहिद सहारा नहीं मानते तो हम जलील और रुस्वा होकर रह जाते हैं। शर्त वही यही है कि हमें अल्लाह पाक को अपना वाहिद सहारा मानना, फिर कितना ही बुरा और कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, हमारा दिल हमेशा सुकून में रहता है, सब्र और शुक्र लाभ पर रहता है। हम मायूस और नाउमीद नहीं होते, हम अल्लाह पाक के रास्ते से नहीं भटकते, क्योंकि हमें दुनिया से कोई उम्मीद नहीं रहती। हमारे पास वाहिद सहारा अल्लाह पाक का होता है। क्या हमारे अमाल इस काबिल हैं कि हमें सीधा जन्नत में डाल दिया जाए और हमें बिल्कुल आजमाया ना जाए, हमारे ऊपर किसी किस्म की मुश्किल ना आए, हमें बुरे वक्त से दूर रखा जाए? बिल्कुल नहीं। अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में आजमाइश के लिए ही तो पैदा किया है। इंसान इस दुनिया में भेजा ही इसलिए जाता है कि वो अपने ऊपर आए हुए मुश्किल वक्त से आखिर लड़ता रहे। किस तरह है? इंसान को पहले इस दुनिया में उतारा जाता है जो फानी है और कभी बाकी रहने वाली नहीं है, और फिर उस पर आजमाइश डाली जाती है, उसका सब्र आजमाया जाता है, उससे उसके नफ्स का इम्तिहान लिया जाता है कि उसकी कुव्वत बर्दाश्त आखिर है, कितनी वो कब तक सब्र कर सकता है और क्या वो इस मकसद को ढूंढ सकता है जिसके लिए वो इस दुनिया में भेजा गया है, जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। और बेशक अल्लाह पाक इंसान को कभी भी उसकी कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। जैसे ही इंसान का जब्त उसके आखिरी मरहाल में होता है, अल्लाह पाक उसे थाम लेता है। तो आजमाइश हर सूरत और हर कीमत पर है। अगर अल्लाह पाक आपको खुशियां नसीब करता है तो वो भी आपके लिए एक तरह की आजमाइश होती हैं। आपको आजमाया जाता है कि आपको उस खुशी में आपके अपने याद हैं, वो लोग जो आपको हमेशा याद रखते हैं, या फिर आपको अल्लाह पाक याद है जो तमाम ताकतों का मालिक है, जो हर कुदरत पर कादिर है, जिसने आपको यह खुशी नसीब की कि आपने उसका शुक्र अदा किया, या फिर आप इस खुशी के नशे में इतने मगन हो गए कि सब भूल गए। बस महज खुशियां भी हमारे लिए आजमाइश होती हैं कि हम उस पाक परवरदिगार का कितना शुक्र अदा करते हैं, कितने एहसानमंद हैं हम उसके। किसी भी तरह की परेशानी, गम या दुख भी तो हमारे लिए आजमाइश ही होती हैं, बहुत बड़ी आजमाइश होती हैं, जिनसे हमारा सब्र आजमाया जाता है कि आखिर हम अगर खुशियों में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं तो क्या परेशानियों में अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं, उसकी सब्र की तलन याद करते हैं। अल्लाह पाक इस आजमाइश के जरिए हमारे सब्र के पैमाने को आजमाता है, क्योंकि अल्लाह पाक के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपका दिल रास्ते पर चलते चलते डगमगा जाए तो फिर अल्लाह पाक इन आजमाइश को हमारे ऊपर डाल देता है कि हम उसकी रजा में राजी भी हैं या नहीं, हम उस रास्ते पर चलने के लायक भी हैं या नहीं। इस्लाम में क्या का जवाब मौजूद है, लेकिन किसी क्यों का जवाब नहीं। बस जो हुक्म हो गया सो हो गया, उस पर अमल करना हमारा अवलीन फर्ज है। हमें अल्लाह पाक के बताए गए रास्तों पर ही चलना चाहिए। जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें अपनी नहीं मनवानी चाहिए, सिर्फ उस परवरदिगार की सुननी है, उसकी रजा में राजी होना है, हर हाल में सब्र और शुक्र का दामन थामे रखना है। बेशक अल्लाह पाक आसानियां पैदा करने वाला है। नमाज हम पर बोझ नहीं है। नमाज तो एक ऐसी इबादत है कि जब अल्लाह पाक के बंदे दुनियावी काम की थकावट महसूस करने लग जाते हैं तो फिर उनके कानों में अल्लाह अकबर की आवाजें
आवाजों की गूंज आना शुरू होती है। अल्लाह पाक नमाज के जरिए अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है। दुनियावी कामों से एक वक़्फ़ के तौर पर उन्हें नमाज के जरिए पैगाम भेजता है। अपने आप से मिलने बुलाता है कि आओ मेरे बंदो, उतार दो अपना दुनियावी बोझ, ला कर दो मेरे सुपर्द अपनी सारी थकन, ला कर दो मेरे हवाले अपने सारे दुनियावी मामलात। कितना प्यारा सौदा है, यह सिर्फ चंद सजदों के जरिए हमें सुकून कल्ब बख्श जाता है। वो बादशाहों का बादशाह होकर भी तुम्हें सुनता है, और एक तुम हो कि फर्ज होने के बावजूद उसकी पुकार का जवाब नहीं देते। कभी उसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग फीके लगने लगेंगे। कभी उसको सुनकर तो देखो, कायनात की सारी आवाजें बेमायने लगने लगेंगी। वो जिसको चाहता है अपनी जानिब मोड़ लेता है, चुपचाप, और किसी को खबर भी नहीं होती। बस फिर वो एक हुक्म देता है और कायनात की सारी ताकतें मुतहद हो जाती हैं। कुन उसके घर तवाफ करने लगता है और सारी बातें फयकुन पर खत्म हो जाती हैं। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह पाक बहुत याद आता है। सब्र करो और यकीन रखो, मायूस दिलों के लिए मोजिज़े नहीं होते। अपने दर्द को अल्लाह पाक से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और रब जाने। वो अपने एक हुक्म से हर वो शय बदल देता है जिसके लिए दिल मुतमईन नहीं होता। मैंने अधूरी तमन्नाओं का हल सजदों में पाया है। तहज्जुद नाम है उस सुकून का जिसमें मेरे अल्लाह पाक से तवील गुफ्तगू होती है। एक वही तो है जो तुमसे बेजार नहीं होता, वो तुम्हें सुनता है और बहुत गौर से सुनता है। अल्लाह पाक अपने बंदे की तड़प कभी भी जाया नहीं होने देता। नदामत भरा एक आंसू, और रब आपकी उम्मीद कभी मत छोड़ना। कमजोर तुम हो, तुम्हारा अल्लाह पाक नहीं। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है उस वक्त भी अल्लाह पाक हमारे साथ होता है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में से याद रखें। अल्लाह हाफिज।